میں ایک بات کہوں گا، اس کام میں جو ہم نے آگے کیا تھی، کوئی بات نہیں، آگے جو کیا ہے، میرا نام آتا ہے یا ان کا نام آتا ہے، آپ کا نہیں آتا اور آپ کا نہیں آتا، اس میں مائنڈ نہ کریں. ہم نے اس فلم انڈسٹری کے انجن کو دھکا لگانا ہے. کم از کم 2 ارب روپیہ ہے، کم از کم 20-25 لوگ تو سلیکٹ ہوں گے، ان کو سپورٹ کریں. ان کو جب آپ سپورٹ کریں گے تو اگلی باری آپ کی آ جائے گی. تو یہاں پروفیشنلی جیلسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سپورٹ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ، شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آخری ڈیٹ کیا ہے؟ 10 مئی بڑھا دی ہے؟ ہاں، یہ بتانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو کہ پیپرز سبمٹ کرنے کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے. 10 مئی ہوگی اور آپ کر سکتے ہیں وہاں جا کے. تو آپ سب کو یہ آخری چانس ہے فلم انڈسٹری کے پاس. اس کے بعد اگر یہ فنڈز جو ہیں ہماری آپس کی لڑائیوں میں ضائع ہو گئے تو پھر کبھی یہ موقع نہیں ملے گا. یہ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو. ملٹی پلیکس کی منوپلی ہے وہ نہیں ہوگی. کنونشنل سینما ہوں گے اور کم ٹکٹ والے سینما ہوں گے تاکہ غریب جسے ہم نے تفریح سے جو ہے بالکل دور کر دیا ہے وہ دوبارہ فلم دیکھ سکے. ایک اور ہم نے پرپوزل دیا ہے، وہ اپنا ذوالفقار علی مانا صاحب کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اسے ابھی ہم کیری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. چونکہ فیڈرل میں گورنمنٹ جو ہے وہ انہی کی گورنمنٹ ہے فیڈرل میں، تو وہ رکا ہوا تھا کہ منسٹر نہیں تھا. ابھی اب منسٹر بھی آ گیا، اب اس کام کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے. وہ یہ ہے کہ ہر اسٹیشن کے باہر ریلوے کی زمین ہوتی ہے، تو ریلوے کی زمین کے اوپر سپریم کورٹ کا جو ہے نا وہ آرڈر ہے، وہ لیز پہ نہیں دے سکتے. اس کا دوسرا حل ہم نے ایک نکالا ہے کہ ریلوے جو ہے وہ ایک پارٹنر آ جائے اس کے اندر، ایک بینک پارٹنر آ جائے اور ایک کوئی بھی کمپنی جو ہے نا اس کے اندر آ جائے پارٹنر. اور سیٹلائٹ سینما جو ہے نا وہ 200 سیٹ کا سینما ہر اسٹیشن کے باہر جو ہے نا 200 سیٹ کا سینما بن جائے، جس کی میکسیمم ٹکٹ جو ہے وہ 200-300 روپیہ ہو. اور یہ چائنا کے اندر یہ ماڈل ہے، انڈیا کے اندر یہ ماڈل ہے. اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے، کوئی کمپنی آ جاتی ہے اس کے اندر، بینک آف پنجاب آ جاتا ہے یا اور کوئی بینک آ جاتا ہے. ریلوے کے ہائی آفیشلس کے ساتھ جو ہے نا میری میٹنگز ہو چکی ہے، ریلوے اس بات پہ ایگری کرتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو گیا، ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تو پھر وہ ایک جو غریب طبقہ جسے ہم نے فلم سے دور کر دیا ہے وہ دوبارہ واپس انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جائے گا. اور ریجنل سینما جو ہے نا وہ تبھی پروان چڑھ سکتا ہے جب تک ایک تو نمبر آف سینماز جو ہے نا وہ اور غریب کی پہنچ میں ہو. یہ ایسا ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم واپس اپنے اس دور کے اندر آ جائیں گے. پھر ہم نے انہیں فلم کالونی کے بارے میں بھی جو ہے نا گورنمنٹ سے گزارش کی ہوئی ہے کہ ایسے ہمارے بڑے بڑے سینئرز لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے نا عمر ساری گزار دی ہے انہوں نے، اور ان کے پاس جو ہے نا چھت نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے نا کوئی اسکیم شروع کی جائے جس کے اندر جو ہے نا وہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ کم از کم چھت تو مل سکے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سب لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور اسے کسی بھی کنٹروورسی میں نہ ڈالیں. اسے ایک دفعہ اس سلسلے کو چلنے دیں، کیونکہ مجھے بھی 30 سال اس انڈسٹری کے اندر ہو گئے. اتنی میٹنگز کی ہیں، اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں میٹنگیں کر کر کے، بیوروکریٹ سے، منسٹر سے، کہیں بھی کوئی جو ہے نا صورت پریکٹیکل نظر نہیں آتی. تو یہ ایک گورنمنٹ ہے جہاں اپنا جو چیف منسٹر ہے وہ عملی اقدامات کر رہی ہے اور ایمانداری کے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس آنیسٹی کے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اگر سب ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے آنیسٹی کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے محنت سے پروجیکٹ بنانے ہیں، ہم نے اپنے سینئرز کو واپس لے کے آنا ہے،
देखिए इस वक्त जितने हमारे नए लोग आए हैं, डायरेक्टर्स जो नए हैं या टीवी के अंदर हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। चीज़ एक वक्त सिर्फ ये लैक कर रही है कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स नहीं है। प्रोड्यूसर हमेशा जो है, प्रोफेशनल प्रोड्यूसर जो है ना, हमेशा अच्छी फिल्म वही बनवाता है। आप रिकॉर्ड चेक करके देख लें, आप हिस्ट्री देख लें, रऊफ शमसी साहब की जो फिल्में हैं, उनके साथ जिन डायरेक्टर्स ने काम किया है, उनकी फिल्मों का क्या वो है, चौधरी अजमल साहब ने जो फिल्में बनाई हैं उनके क्या है म्यार। इकबाल कश्मीरी साहब मरहूम बहुत उम्दा डायरेक्टर थे, जो सजाद गुल साहब की फिल्में उन्होंने बनाई हैं और जो दूसरों की बनाई, एक वाले वो है ये चौधरी इस्माइल साहब। तो प्रोड्यूसर्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्रोफेशनल जो है उसका रोल होता है, सिर्फ प्रोड्यूसर पैसा खर्च देने वाले का नाम नहीं है। तो हमें प्रोफेशनल्स प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है, सीनियर्स प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है। आए चौधरी अजमल साहब बनाए फिल्म दोबारा, सजाद साहब बनाए, शिराज साहब बनाए और बहुत सारे लोग हैं अपना वो आए और यंगस्टर्स को लें, सीनियर्स को लें, कॉम्बिनेशन बनाए। सैयद नूर साहब हैं, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, अपना जो है ना अल्लाह सलामत रखे, हम सब ने जाना है। उसके बाद क्या आपको नजर आएगा, ये मसूद भट्ट साहब हैं, कितने के लोग रह गए यहाँ पे। हमें एक नई खेप तैयार करनी है। इस फिल्म इंडस्ट्री का जो मेरा बेसिक फिल्म स्टूडेंट एनालिसिस ये है कि इसकी तबाही के जिम्मेदार जो है ना हम खुद भी हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे डायरेक्टर्स भी हैं। किसी ने अपने असिस्टेंट्स को परवान नहीं चढ़ाया, सिवाय एस फिल्म साहब के स्कूल के या अनवर कमाल पाशा साहब के स्कूल के कोई डायरेक्टर नहीं आगे आया, किसी ने अपने असिस्टेंट को आगे नहीं आने दिया। कितने लोग हैं जो है आए आगे। तो अब ये जरूर, अब बच्चे फिल्म पढ़ के आ रहे हैं, अब देखिए आपके प्रोजेक्ट पे अप्रूव होते हैं, अब उनको सिलेक्ट करें, उन्हें मौका दें, जवानों को आगे लेके आए, कॉम्बिनेशन बनाए सीनियर्स का जूनियर्स का। तो ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश है और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा साथ दें। हम जो है पंजाब फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के जो है ना चेयरमैन सैयद नूर साहब को बनवाएं, ताकि ये जो है ना हम किसी तरफ लग जाएं, एक अमली काम शुरू हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों का जो है वो शुक्रगुजार हूँ और उन तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। इस सारे सिनेरियो में एक कैरेक्टर जिसने हमारा बहुत साथ दिया, उसका नाम है नदीम मांडीवाला। नदीम मांडीवाला कदम कदम हमारे साथ रहा और हमारी एसोसिएशन का उसने बहुत साथ दिया है और साथ खड़ा हुआ है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। बड़ी अच्छी बातें की हैं नूर साहब ने कि हमें एक साथ होकर सबको ना इसको परवान चढ़ाना चाहिए। और मैं जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त टेक्नीशियन बैठे हैं, चाहे वो अपना उस डगर में नहीं आते जो 20 साल की है, लेकिन वो सब अप्लाई करें। जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी फिल्म साज हैं, उनका एक कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने काम किया है, वो काम देखेंगे। ये ना सोचें कि 20 साल पहले हमने फिल्म नहीं बनाई तो हम उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, सब आएंगे, सब अप्लाई करें। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई ये ना कहे कल को कि जी हमने अप्लाई नहीं किया, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। सबको ये हक हासिल है, इनका हिस्सा बनता है आप सब लोगों का। आप अप्लाई करें, आगे आगे सबकी किस्मत जो जो आप अपना ही वहाँ पे दिखाएंगे। ये बात वाज़ेह करें कि इनमें डायरेक्टर शामिल हैं कि नहीं है? जी डायरेक्टर भी शामिल है इसमें, हर टेक्नीशियन शामिल है, सब शामिल है। और सब प्रोड्यूसर का मेंबर होना जरूरी है और प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं काम चलेगा। उनको वो क्योंकि ये रिकॉग्नाइज जो है ना, वो हमारी एसोसिएशन यही है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तो उसके पहले मेंबर हो, 10 तारीख आपके पास है, उसके बाद अप्लाई करें कि ये 10 मई है। उसके बाद अपना ये ना कहिएगा कि जी हमें चीटिंग की, हमारे साथ धोखा हो गया, हमें किसी ने बताया नहीं। ये सबके सामने आपको कह रहे हैं, हर आदमी को राइट हासिल है और प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर बनकर वो अप्लाई करें। और अपनी किस्मत है, आपकी वो जो कारकर्दगी होगी पिछली वाज़ेह होगी ना, वो सब सामने रखकर वो जो लोग फैसला करेंगे, वो बंदे तो नहीं है ना, जिसने जो काम किया उसको देखेंगे, परखेंगे और सबको उसका राइट है, सबको मिलेगा इंशाल्लाह। ये मैं माना साहब से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक मीटिंग की है आपस में बैठ के। उसमें हमने जो बंदे भी हमारे साथ थे सारे, उनको इत्मीनान में कुछ को लिया है, कुछ को लेना है। हमने ये बात आपस में बैठ के तय की है कि हमारा सबका सरबराह जो होना चाहिए इस इंडस्ट्री में,
जो हमारी सब मीटिंग आगे जाके करे और इस फिल्म की इंडस्ट्री की सारी बागडोर उसके हाथ में हो, हम चाहते हैं वो सैयद नूर साहब हों। मैंने मियां अमजद साहब ने और फिल्म इंडस्ट्री के शुदा रफीक साहब ने सब ने परसों बैठकर ये सारी मीटिंग की थी। हम सब ने ये फैसला किया है कि शाह जी माने या ना माने, हमारे बड़े ही शाह जी हैं। और मेरी बात सुन लें शाह जी, 2 मिनट बैठ ये बड़ी इज्जत की बात है, इन्होंने मुझे कहा है, लेकिन भाई मैंने अभी काम करना है, मैं तो अभी काम नहीं है। नहीं फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाना बड़ा फुल टाइम जॉब है सर, यही तो बात है। तो मैं अगर उधर भी ना टाइम दे पाऊँ, उधर भी ना दे पाऊँ, पार लगाए, सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं, सब आपके साथ हैं। वो जो काम हम इनको कह रहे हैं ना, वो रोज करने वाला नहीं है। वो महीने में 2 महीने में एक दफा गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करनी होगी तो आप लीड करेंगे किसी जगह भी, लेकिन वो हमने आपको अपना सरबराह बनाना चाहते हैं। आप इंडस्ट्री बना दिया है, आप इंडस्ट्री की पहचान है, हमारी शान है। आपके बगैर हमारी पहचान पूरी नहीं होती। वेरी गुड। जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल अच्छा कहा। बड़ा नूर साहब को भी, नूर साहब को टाइम देना चाहिए, जैसे मोहब्बत में टाइम देते हैं, यहाँ पे भी टाइम देना चाहिए इनको। मैंने कह दिया जो कहना, मेरे मार्कवाड़ी जो तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये अपना ये अशरफ डैन साहब से मैं कहूँगा कोई अपने ख्यालात के साथ करें, या गुलू साहब आइएगा, क्या कर रहे हो? आइएगा आप गुलू साहब हैं और ये एक प्रपोजल गवर्नमेंट को हमने दी थी, जिसमें 2 लोगों को मैं क्रेडिट दूंगा, सफदर मलिक साहब को और नदीम मांडवीवाला साहब को। वो ये थी कि ये तो हो गया नई प्रोडक्शंस और अंडर प्रोडक्शंस, जो भी फिल्म बनेगी और वो रिलीज होगी उसके ग्रॉस के ऊपर आपको जो है हमने 30% गवर्नमेंट को लिख के दिया है। लास्ट जो मीटिंग में थी सैयद नूर साहब वहाँ पे थे, 25% जो है ना मरियम औरंगजेब साहब ने एग्री किया कि 30% मैं मनवा लूँगी सीएम से। तो 30% इंशाल्लाह होपफुली जो है ना हर रिलीज होने वाली फिल्म के ग्रॉस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना वो रिबेट देगी। ये हर किसी के लिए है, किसी का प्रोजेक्ट अप्रूव होता है या नहीं होता, ये जो है ना हर फिल्म के जो है ना ग्रास के ऊपर जो है वो उसे वो भी एसोसिएशन जो है ना उसे जो है ना करेंगी वेरीफाई, उनके लेटर से जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना पैसे देगी। वो सारा डिजिटल डाटा सिनेमाओं का जो है वो अपना जो है ना आ जाएगा एसोसिएशन के पास। एसोसिएशन जो है ना वो बड़ी ऑनेस्टी से जो है वो लेटर जारी करेगी। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि PFPA से आप ये उम्मीद रखें कि जो भी जायज़ काम आपका है हम उसके लिए दिन रात हाजिर हैं। कोई ऐसा नाजायज़ काम हमें ना कहिएगा, कोई नाजायज़ वेरिफिकेशन ना लेके आइएगा, वो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और हम एक जो भी गवर्नमेंट PFPA की जिम्मेदारी लगाएगी, हम वो एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी ही वेरीफाई करेगी। उसमें कोई अकेला चेयरमैन जो है वो कुछ नहीं कर सकेगा। हम बाहमी हम मुशावरत से जो है वो कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जो है ना हर चीज़ अप्रूव करेगी। ये वो अचीवमेंट है जो अभी तक हुई है। दूसरा, हमने गवर्नमेंट को एक तजवीज़ दी है, इस प्रपोजल के अंदर ही है, जो उन्होंने नोट कर लिया है, वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वो भी हो जाएगा। चूँकि सैयद नूर साहब के मरियम औरंगजेब साहबा से ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो हम मेरे गुजारिश करेंगे उनके पीछे जो है वो ये है कि इसके बाद है IPO का लेटर। IPO का लेटर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी ज़रूरत हर हाल में आपको जो है वो आनी ही आनी है। आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, देन आपको फिर भी ये देना पड़ेगा। लेकिन चूँकि ये प्रोसेस एक बड़ा तवील है, वो अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि भी ये 6 महीने से 1 साल लगता है इसमें, तो लिहाजा जो है ना सिर्फ हमें जो है ना जमा करवा देने तक की रसीद की हद तक जो है ना एक्नॉलेजमेंट रसीद जो है वो कंसिडर करें।
یا اسے جو ہے نا بالکل ختم کر دیں، جس کا پروجیکٹ جو ہے اپروو ہو جائے تو